ओके सो आज हमको नया चैप्टर स्टार्ट करना है. We want to study gravitation from today onwards. Normally I suggest electrostatics and gravitation एक के बाद दूसरा होना चाहिए because formulas involved are more or less same. Why? Because the general structure of the force, मतलब क्या, मतलब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस जब रेस्ट पे थे तो हमने बोला द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by R square. यहाँ पे जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 by R square. क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला सेम है तो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूंगा मैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, you remember this formula, electrostatic potential is proportional to source charge upon distance of the point where you are calculating potential. Similarly यहाँ पे gravitational potential Vg is also source mass upon distance. फिर आपको याद होगा potential energy of two charges was proportional to Q1 Q2 by R. Similarly, gravitational potential energy is also proportional to M1 M2 by R. Right? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला सेम था, मोर और लेस सेम स्ट्रक्चर है, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है मैंने आपको बताया है. इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब when the force is inversely proportional to the distance between the two objects, two masses, two charges, then such forces are called as inverse square laws. Law, LAW law. Okay, so क्योंकि बेसिक फोर्स का फॉर्मूला सेम है इसलिए बाकी के इक्वेशंस भी मोर और लेस सेम बनते हैं. इसलिए अगर आपको ज्यादा फॉर्मूलाज याद नहीं रखना, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको टाइम स्पेंड नहीं करना, तो ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स should go hand in hand. Then what is the difference? There is a difference. The difference is gravitational force जो है it is always positive. Okay, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है it may be positive, मतलब अट्रैक्टिव बोलना चाहता हूं मैं. So you don't get me wrong when I say positive. So gravitational force is always attractive. Electrostatic force may be attractive, may be repulsive depending on the charges. Correct. तो जब भी फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का साइन नेगेटिव आता है. So negative sign in potential energy means that the force is attractive and positive sign in the potential energy means the force is repulsive. इसका मतलब gravitational potential energy में negative sign आएगा ही compulsorily. Right, so we'll go into all these details in this chapter. हम स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक से. बहुत बेसिक मतलब वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट लॉज दैट गवर्न मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन. राइट, तो टू स्टार्ट ऑफ विथ हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे. देखो ऐसा है कि ये ग्रेविटेशन, हाउ डू वी नो देयर इज ग्रेविटेशन. ऑफ कोर्स आप सबको इस चीज पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव. मतलब जहां भी मास होगा, इफ यू हैव टू पॉइंट्स और दोनों पॉइंट में अगर आपने मास डाल दिया और अगर उस दो पॉइंट मासेस के अलावा कुछ और है ही नहीं सराउंडिंग में, तो दीज टू मासेस स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. राइट, गुड. सो wherever there is mass or there are masses, there is attractive force and that is gravitation. How do we know? Simple, एक्सपेरिमेंट करो. टेक एनीथिंग दैट यू वांट, उसको रिलीज कर दो, वो नीचे ही आएगा. मतलब दैट ऑब्जेक्ट विच इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट
always fall downwards towards the center of earth. ये important है. It goes towards the center of earth. ये बहुत important word है. Right? So this is how we know that gravity exists. दूसरा, gravitational force exist करता है, ये कहाँ से पता लगा? Because of your own weight. If you feel that you have weight, that means Earth's gravity is acting on you. That means because of the gravitational force of Earth, you have weight. Otherwise, weight नहीं तो आपको कम से कम मास तो सबके पास होता ही है basically. So you have mass, everyone knows. Okay, but weight is because of Earth's gravity. तो imagine आज से बहुत साल पहले जब साइंस ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो ग्रेविटी है ये कैसे पता लगेगा? मैंने अभी सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया. न्यूटन को कैसे पता लगा? उसके सर पे आके एप्पल गिरा तो पता लगा देयर इज ग्रेविटी बिकॉज एवरीथिंग इज फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ, नथिंग इज गोइंग अप. हर चीज नीचे ही गिर रही है बेसिकली, राइट? बट आल्सो देयर वाज सम अदर गाय, उसका नाम था केपलर. केपलर ने क्या किया? केपलर kept on observing motion of planets in the night sky for years and years and years. बहुत सालों तक सिर्फ वो स्काई में, आपको पता है, यू कैन सी विथ योर नेकेड आई. क्या क्या देख सकते हो? यू कैन सी वीनस, you can see Mars, you can even see Jupiter, you can see Saturn. Okay, so you can see a lot of planets with your naked eyes. तो केपलर बहुत सालों तक ये जो planets है इसके मोशन का स्टडी करता रहा. मतलब what is the orbit of a planet, how they are tracing the sky, sky में वो कैसा जा रहा है planet, so on so forth. Okay, right, good. So depending on his observations, he came to a conclusion, and the conclusion were written in the form of 3 laws. तो केपलर ने जो कुछ ऑब्जर्वेशंस किए वो 3 लॉ के फॉर्म में हमारे पास आज है. तो ग्रेविटेशन ये चैप्टर हम स्टार्ट ही केपलर्स लॉ से करते हैं, क्योंकि 2 ही बेसिक चीजें थी. एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि न्यूटन के सिर के ऊपर आके एप्पल गिरा, राइट? तो ही सेड अर्थ इज अट्रैक्टिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सो अर्थ इज अ सोर्स ऑफ सम फील्ड, राइट? दूसरा था केपलर्स के ऑब्जर्वेशन. सो व्हाटएवर वी हैड, हम वहीं से शुरुआत करते हैं. तो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम केपलर्स लॉ. ओके, और एक एक करके उस लॉ को समझ लेंगे. देन वी विल पुट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. आई विल कीप दिस चैप्टर एज सिंपल एज पॉसिबल, राइट? तो ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं अननेसेसरली. हमको पता है ग्रेविटेशन क्या होता है, सबको पता है, बिकॉज यू हैव लर्नड इन school at least basic thing. What basic we have learned? Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. This is called as Newton's law of gravitation. ये हम लिखेंगे बाद में. Okay, we will write it down, but we will start with Kepler's laws. So Kepler's 3 laws of motion we'll put down one by one. So Kepler's laws of planetary motion. तो बेसिकली ये आपको सिर्फ प्लैनेट्स का मोशन अराउंड सन कैसा है ये बताता है. पहला, फर्स्ट केपलर्स लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, also called as law of orbit. तो Kepler's first law or law of orbit tells you what is the shape of the orbit of any planet around sun. So let's take sun sitting at the center. Okay, मैं सन को सेंटर पे फिलहाल नहीं रखूंगा, बाद में, क्योंकि
because Kepler's first law of orbit tells you, ये आपको बताता है that all the planets move in an elliptical orbit around the sun with sun at one of the foci. तो ऑर्बिट जो है किसी भी प्लैनेट का, it is not circular, it is elliptical in shape. Okay, with sun at one of the foci. तो बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज आ गई कि अगर ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो जैसे हम सर्कल में रेडियस लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रेडियस डिफाइन नहीं कर सकते. Why? Because this is not a circle. What is radius? Radius, distance of any point on the circumference of circle from its origin is radius. पर यहाँ पे तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस ही अलग अलग है, राइट? तो वी विल कम टू दैट, हम लोग बात करेंगे उसकी. बट इंपॉर्टेंट इज दिस, मैंने ये बोला था while telling you about Kepler's law, what I told you was all planets move in elliptical orbits around the sun with the sun at one of the foci. मतलब दो ऐसे पॉइंट है जिसको फोकस बोलते हो इलिप्स में. सन या तो एस पे होगा या एस डैश पे होगा. ओके, राइट. ओ बी द ओरिजिन, राइट. तो एस एंड एस डैश आर द फोकाई ऑफ इलिप्स. तो when you use this word foci, तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए, राइट? तो you should know what is foci. foci का मतलब अगर नहीं पता तो you will not be able to, you will understand definitely what I am saying, but foci exactly क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है. So what is foci? देखो इलिप्स क्या है, इलिप्स छोड़ दो, कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लो. So I'll tell you some little bit of mathematics. कोई भी एक स्ट्रक्चर ले लो, मैं मान लेता हूं एक सर्कल है. व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट. लोकस मतलब क्या होता है? लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स जो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, राइट? सो सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर सेटिस्फाइंग वन पर्टिकुलर कंडीशन. और वो कंडीशन क्या है? अगर मैं सर्कल लेता हूं, सेंटर को ओरिजिन मानता हूं, तो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा, अगर any point, be it P, be it Q, be it whatever it is, they will all satisfy one condition, and that is x square plus y square equal to r square. That is the equation of circle. Don't trust me. Don't trust me. तो प्रूव करो. How do you prove? Easy है. देखो हम प्रूव कैसे करते हैं. Sorry to go a little bit into mathematics, but जरूरी है यहाँ पे. मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है, ये इस सर्कल का ओरिजिन है. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1. एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. ये O से P तक का डिस्टेंस है, राइट, जिसको मैंने r बोला हुआ है. मैं अप्लाई करूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला. फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला OP, और दैट इज इक्वल टू r, दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. ओके, अगर मैं मान लेता हूं x1 y1 ये 0 0 है क्योंकि ओरिजिन है, और x2 y2 ये xy है बेसिकली, और मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे मिलता है r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मतलब मुझे मिलता है r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट? मतलब मैं इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लूं, P, Q, S, T, any point on this circle will satisfy this particular condition, right? So what is circle? Circle is a set of points or locus of points which is satisfying some particular condition. Okay, good. तो
Similarly, ellipse also is a set of point or locus of point which satisfies some particular condition, और वो particular condition से आप focus foci define कर सकते हो. So an ellipse is a set of all points xy in a plane such that the sum of their distance, अच्छे से सुन लेना. हमारे पास एक इलिप्स है, इस इलिप्स पे दो पॉइंट है S और S डैश, है ना. इलिप्स पे नहीं मतलब उसके एक्सिस पे पॉइंट है वो, राइट. सो इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane such that the sum of their distance from two fixed point is constant. मतलब मैं ये P लेता हूं, अगर ओके P लेता हूं तो PS प्लस PS डैश, मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं Q, तो QS प्लस QS डैश, मैं कोई और पॉइंट लेता हूं R, तो RS प्लस RS डैश, इन सब का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट. तो ये जो दो पॉइंट है फॉर विच सम ऑफ ईच पॉइंट ऑन द इक्लिप्स इज कांस्टेंट, these two points are called as foci. फोकस, दो फोकस होते हैं, so there are two focus, right. ये पता होना चाहिए, even though you will not need it here in physics, but at least आपको पता होना चाहिए कि फोकस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने लेंस में, मिरर में फोकस सीखा है वो अलग. वो फोकस मतलब जहां पे ऑल द रेस दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, सारे के सारे रेस रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे या फिर जिस पॉइंट से डाइवर्ज होंगे, दैट पॉइंट इन ऑप्टिक्स इज कॉल्ड एज फोकस. बट इन ज्योमेट्री हियर फोकस का मतलब मैंने बता दिया आपको. सो द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट on the eclipse from two fixed point is constant. That is what you mean by focus. So there are two focus. So according to Kepler's first law of motion, all the planets move around the sun with the sun at one of the foci of the ellipse. तो sun या तो S पॉइंट पे होगा या फिर S डैश पे होगा, राइट. तो इट इज दैट सिंपल. ओके, अब ये तो पक्का पता लग गया कि ऑर्बिट जो है वो इलिप्स है, मतलब वो सर्कल नहीं है. मतलब सन जो है मान लो यहाँ पे बैठा है, सन इज एट पॉइंट एस मान लो, और प्लैनेट जो है वो ऑर्बिट में है, तो प्लैनेट इज गोइंग अराउंड इन दिस ऑर्बिट. तो इसका मतलब ये है दैट the distance between sun and the planet is not constant. अगर सर्कल होता तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में the distance between center and any point on the circumference is constant, but because this particular orbit being ellipse, तो जब प्लैनेट P पॉइंट पे होगा तो प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, तो इस P पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पेरीहेलियन. पेरीहेलियन, हेलियन मतलब सन, एंड P इज द नियरेस्ट पॉइंट टू द सन. और जब सबसे दूर होगा A, इस A पॉइंट को हम बोलते हैं एपेहेलियन. एपेहेलियन, राइट. इजी, गुड. देन ये जो डिस्टेंस है PA, P से A का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पेरीहेलियन एंड एपेहेलियन, इट इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस. अब मेजर एक्सिस क्यों बोला हमने, क्योंकि अगर सर्कल होता तो ये डिस्टेंस PA या फिर ये डिस्टेंस MN, बोथ आर सेम, बोथ आर डायमीटर्स, राइट. बट इन केस ऑफ एलिप्स एक एक्सिस बड़ा है
पी ए एक्सिस बड़ा है और एम एन एक्सिस छोटा है, तो पी ए एक्सिस को बोलेंगे मेजर एक्सिस क्योंकि बड़ा है वो, और एम एन एक्सिस को बोलेंगे माइनर एक्सिस क्योंकि वो एक्सिस छोटा है, इसलिए उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। बाय नोटेशन, बाय द वे, ये पॉइंट है ओ सेंटर में, ओके, तो सेंटर से लेफ्ट में ओ से पी ये डिस्टेंस ए लिया जाता है, ओ से ए ये डिस्टेंस भी ए लिया जाता है, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ओ पी या फिर ओ ए या फिर ए से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि ये मेजर एक्सिस का हाफ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस। मतलब मेजर एक्सिस क्या हो गया, 2a, a प्लस a, राइट, ओके, दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, राइट। देन ये जो एम एन डिस्टेंस है जिसको हमने माइनर एक्सिस बोला है, इसको हम लोग बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं बी। इसका मतलब ओ एम और ओ एन, ये जो डिस्टेंस है बी, इट इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस, हाफ ऑफ माइनर दैट इज सेमी माइनर। सो माइनर एक्सिस हो गया 2b और सेमी माइनर हो गया b, राइट। इजी, बहुत इजी है ये। तो इन शॉर्ट वी स्टार्टेड विद ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोस्टली टू लॉज। वन इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं, विल सी दैट लेटर। Other law is Kepler's law, and Kepler's law talk about motion of planet around the sun. On these observations were made by an astronomer जिसका नाम था केपलर, राइट। तो जो भी ऑब्जर्वेशन इसने किए थे रिगार्डिंग मोशन ऑफ प्लैनेट, दे आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉज। पहला लॉ है केपलर्स फर्स्ट लॉ विच इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट आपको इतना ही बताता है all the planets move in elliptical orbit around the sun with sun at one of the foci of the ellipse। क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है, और सन जो है वो एक फोकस पे बैठा है, तो प्लैनेट विल बी सम टाइम नियर, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट टू द सन इज called as perihelion, and the farthest point of the planet from the sun is aphelion। And luckily we are in December, and we मतलब earth is now at aphelion point। मतलब अर्थ जो है वो सबसे दूर है, इसलिए जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, आपको पता होना चाहिए अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, तो अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, मतलब नॉर्थ पोल अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये ऊपर का जो रीजन है नॉर्थ पोल, राइट, साउथ पोल, सॉरी, I mean this is, the tilt is not like this, the tilt is like this, something like this, okay। Anyways, तो नॉर्थ पोल रिसीव्स लेस सनलाइट। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूं आपको, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एपेलियन पेरिलियन, तो बताना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो दिस इज आवर प्लैनेट, एंड द एक्सिस ऑफ आवर प्लैनेट is tilted by 23 degrees and some minutes। So ये जो ऊपर का पार्ट आ गया, ये the one which I'm shading in green, this is nothing but northern hemisphere, and जो नीचे का पार्ट है that is southern hemisphere। sun is over here। इसका मतलब we in December are at aphelion position, or when in aphelion northern hemisphere of the earth receives less sunlight due to the tilt
ऑफ अर्थ एक्सिस। इसके लिए दिसंबर में यहाँ होती है ठंड, और सदर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ पहले मैं था 4 महीने 5 महीने पहले तक जहाँ मैं था सदर्न हेमिस्फीयर में था, आई वाज इन चिली, वहाँ पे अब हो गया समर। ओके, so this is how it works basically. Okay, normally. अब आज से 6 महीने के बाद, मतलब समवेयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, अर्थ विल बी एट इट्स perihelion, and northern hemisphere will be receiving much more amount of heat from the sun, because we will be at the closest point, and hence because of the tilt of earth, northern hemisphere will face directly the sun, so more heat is received, so we will be in summers, right? This is some general information that I gave you. मतलब बेसिकली सिर्फ इतना ही है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होने की वजह से सीजन्स भी होते हैं, एंड बिकॉज एनी प्लैनेट और एवरी प्लैनेट इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, नियरेस्ट पॉइंट को आप बोलते हो पेरीहेलियन, फारदेस्ट पॉइंट को बोलते हो एपेलियन, पेरीहेलियन से लेके एपेलियन तक का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हो आप मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का हाफ करते हो उसको बोलते हो सेमी मेजर एक्सिस, जो छोटा एक्सिस उसको बोलते हो माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के को अगर हाफ कर देते तो बोलते हो सेमी माइनर एक्सिस. So this is all you need to know, right? And since Kepler's laws of motion, Kepler's laws of planetary motion, ये सारे के सारे प्योरली बेस्ड है ऑन ऑब्जर्वेशंस ओनली. ये सारे के सारे दे आर बेस्ड ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन. इसका कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है. ओके, एक्सेप्ट फॉर सेकेंड लॉ, वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में जब 3 लॉ लिखे गए थे तो दे वर विदाउट एनी प्रूफ, दे वर प्योरली ऑब्जर्वेशनल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट थियरी पार्ट फ्रॉम केपलर्स लॉ. 5.2 Kepler's laws just a minute. Yes, here we go. Okay, so Kepler's law of planetary motion हमको क्या बताता है? They describe the orbits of planets around the sun. Kepler's laws of planetary motion describe the orbits of the planets around the sun, right? This one statement is sufficient to start off with, and we will directly jump to first law, Kepler's first law. Okay, so let's start with first law. Kepler's first law, which is also called as law of orbit, and it tells us what? All the planets move in elliptical orbits around the sun, with the sun is named, so I should be using capital. Okay, with the sun at one of the foci of the ellipse, right? Extremely simple. Let me draw a diagram to explain this motion.
So let me just take one axis over here, another small axis over here, and let us draw an ellipse. Something like this. मान लेना ellipse है. I'm not good at drawing, so please assume this is ellipse. Okay. Then there are two focal points S and S dash. ये center है. Sun can be at S or S dash. ये nearest point है P. ये farthest point है A. P is perihelion, A is aphelion. इस पॉइंट को मैं देता हूं नाम M, इसको देता हूं नाम N. तो P से लेके A तक का जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली मेजर एक्सिस विच इज 2A. M से तो N तक का जो डिस्टेंस है दैट इज माइनर एक्सिस दैट इज 2B, राइट. और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस यहाँ पे A है बेसिकली, राइट. तो this is all you should know. Then let us quickly note these things down. Oh, sorry. Yep. So I can fit this over here. That is fine. Okay. So the orbit of a planet around the sun is shown in the figure. Here S and S prime are the foci of the ellipse. The sun is at one of the foci, let us say at S. The sun being at S, right. Then P is the closest point along the orbit, और इस पॉइंट को बोलते हैं along the orbit from the sun or from S, you can say from S. इस पॉइंट को बोलते हैं P है ना, perihelion, and is called perihelion. उसके बाद A जो पॉइंट है, A is the farthest point along the orbit from S and is called aphelion. Right. Then क्या रह गया? What else we want to describe? Major axis, semi major axis, minor axis, semi minor axis, ये रह गया. Okay. The distance PA is called as semi major axis. So PA is the major axis, not semi major, it is the major axis. That is equal to 2 times of A. उसके बाद OP equal to OA
these two are OP and OA are the semi major axis, क्योंकि मेजर एक्सिस के हाफ है दोनों, सेमी मेजर एक्सिस, these are equal to A. Similarly, MN is the minor axis, which is equal to 2B. Then OM and ON, so MO and ON are the semi-minor axis, and they are equal to B, right? तो इतना ही आपको फर्स्ट लॉ के बारे में पता होना चाहिए. That's sufficient to know. Okay, let's see what is second law of Kepler. So Kepler's second law, which is also called as law of areas. It is interesting. So let's see in detail what it means. देखो, I will be just drawing another diagram here. तो ऐसा है, अब ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया. Sun is at one of the focus, so let's say Sun is sitting here. S point पे है Sun. Now let us say initially planet is at point P. planet जो है वो P point पे है. After some interval of time, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जितना भी टाइम लोगे आप, the planet is at point P dash. इस planet ने ये in the given interval of time इतना एरिया सबटेंड किया है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि प्लैनेट ने एरिया सबटेंड किया, हम लोग बोलते हैं द लाइन दैट जॉइंस अ प्लैनेट एंड द सन. क्योंकि ये जो लाइन है SP, मैं S से लेके P तक की लाइन की बात कर रहा हूं. द लाइन दैट जॉइंस अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स एन एरिया. मतलब ये जो लाइन है SP, इसको R बार बोल सकते हो, डजंट मैटर, रेडियस नहीं है, बट ये दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P बोल सकते हो, या ऐसा भी बोल सकते हो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ प्लैनेट स्वीप्स. देयर इज अ टेक्निकल थिंग हियर which you can understand from vectors. Position vector you can only use if the vector starts from origin. मतलब आपको सन पे आपका origin सेट करना पड़ेगा. अंडर दैट कंडीशन SP वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर R बार बोल सकते हो. एनीवेज, इंपॉर्टेंट इज ये जो लाइन है S से लेके P तक, जब प्लैनेट अपने ऑर्बिट में आगे जाएगा तो ये जो लाइन है SP, ये एक एरिया कवर करेगा. मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मैं जो वैल्यूज यूज कर रहा हूं, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ही कर रहा हूं. डोंट टेक इट कि हाँ सर ने 2 महीना ही बोला था. इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मैं मान लेता हूं कि P से लेके P डैश तक जाने के लिए प्लैनेट को लगा डेल्टा T, टाइम इज डेल्टा T, एंड दैट डेल्टा T इज लेट अस से 1 मंथ. ठीक है, लेट अस से 1 मंथ. तो 1 मंथ में प्लैनेट ने कुछ एरिया A स्वीप किया है, कवर किया है. मतलब अब ऐसा मान लो कि जो प्लैनेट था वो यहां पे कहीं है.
आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स, ठीक है। लेट्स से दिस इज पॉइंट आर या फिर पॉइंट क्यू। अब एक महीने के बाद, क्यू से एक महीने के बाद, planet is here, let us say at q dash, and the planet is sweeping an area। तो केपलर्स सेकेंड लॉ हमको सिर्फ इतना ही बताता है that the line that joins planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time। मतलब ये एरिया A1 ये भी एक महीने में प्लैनेट ने कवर किया है, और ये जो एरिया A2 है ये भी एक महीने में अगर प्लैनेट ने कवर किया है, तो A1 और A2 ये इक्वल एरियाज होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए along the orbit, along the orbit, along the ellipse, P से लेके P डैश तक का भले ही आर्क लेंथ कम हो, क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है कि अगर एक प्लैनेट P से P डैश जाने के लिए एक महीना लगा रहा है और P डैश से Q पर आने के लिए एक महीना लगा रहा है, तो ये जो P डैश आर्क लेंथ होगा और P डैश Q आर्क लेंथ होगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाता है। Why? Because the planet, if in circular motion, remains at same distance from the sun, which is the source of the force, gravitational force कहाँ से मिल रहा है? सन से मिल रहा है। अगर planet continuously source of the force, gravitational force का कौन सा सोर्स है? सन, उससे अगर इक्वल डिस्टेंस पे है, इसका मतलब उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, विच इज ट्रू ऑल्सो, क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल है, तो प्लैनेट का स्पीड इन द ऑर्बिट इज नॉट कांस्टेंट। प्लैनेट अगर सन से दूर गया तो स्लो हो जाता है, सन के पास आया तो फास्ट हो जाता है, वो मूव्स फास्टर, राइट। एंड इट कम्स फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम देखेंगे डिटेल्स में। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सीखा है, कब सीखा है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। यहाँ पे हम देखेंगे conservation of angular momentum, मतलब angular momentum at any point on the orbit is constant, this is what I am saying, right। ऐसा कब होता है? जब फोर्स सेंट्रल फोर्स हो। सेंट्रल फोर्स मतलब always towards the source, sun is the source, force is always towards the sun। planet कहीं पे भी हो, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स सन है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव है, राइट। जितना पता होना चाहिए उतना मैं बताने वाला हूं। तो केपलर सेकंड लॉ हमको क्या बताता है? दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब पी से पी डैश अगर एक महीने में प्लैनेट गया तो उसने कुछ एरिया कवर किया, राइट। और क्यू से क्यू डैश अगर एक महीने में आया है तो भी कुछ एरिया कवर किया है, क्योंकि टाइम पीरियड डेल्टा टी दोनों 1 मंथ था, तो ये एरिया A1 और A2 इक्वल होंगे, डजंट मैटर वेयर द प्लैनेट इज। The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time। तो ये जो लॉ है ये हमको एरिया का इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। गुड, एक्सीलेंट। हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करोगे? इजी है। ये प्रूव करने के लिए आपको चाहिए वेक्टर्स का बेसिक्स। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू एट एवरी पॉइंट दैट वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस यूजिंग वेक्टर्स। ओके, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट इज मस्ट टू नो। एक, जब भी एंगुलर मोशन हो, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो इलिप्टिकल हो, और जब भी एंगुलर मोशन हो, उस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा होता है टेंजेंट। ये पता होना चाहिए।
ये है v का डायरेक्शन। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, अगर p से p डैश के लिए डेल्टा t टाइम लगा है तो p डैश ये डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी v डेल्टा t, राइट? v delta t because velocity is meter per second into time is in second, कैंसल मतलब मीटर, मतलब डिस्टेंस के यूनिट्स आने चाहिए। तो ये जो p डैश आर्क लेंथ है तुम्हारे पास दैट इज v डेल्टा t, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो v बार डेल्टा t। ओके गुड। एंड इफ डेल्टा t इज सफिशिएंटली स्मॉल, जैसे 1 month in comparison to 12 month is small, right? So if delta t is sufficiently small, pp dash is nothing but a straight line. इसका मतलब ये जो एरिया A1 की मैं बात कर रहा था that is area of triangle SPP dash and area of triangle SPP dash delta A, जिसको मैंने A1 बार बोला है, मैं इसको डेल्टा A बोल देता हूं अभी। लेट अस कॉल दिस एज डेल्टा A बार, that is equal to, that is why vector is important। आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ सबटेंडेड बाय टू वेक्टर्स, क्योंकि आप देखो ये r बार एक वेक्टर है, उसके बाद v बार डेल्टा t ये भी एक वेक्टर है, pp डैश मतलब, राइट? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय इन दिस केस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r बार क्रॉस v बार डेल्टा t बाय 2, हाफ r बार क्रॉस v बार डेल्टा t। ये कहां से आया? ये आया आपका क्रॉस प्रोडक्ट में, हमने प्रॉपर्टीज लिखे थे, हमने बोला था मॉड्यूलस ऑफ, इफ यू रिमेंबर मॉड्यूलस ऑफ, हमने बोला था मॉड ऑफ, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी रोट वाज, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, एक था a बार एक था b बार, ये दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स थे, एंड a बार क्रॉस b बार, इसका मॉड आपको देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये पूरा एरिया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कहां से मिलेगा? अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करता हूं, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है, दो ट्राइंगल से पैरेललोग्राम, तो मैं अगर a बार क्रॉस b बार बाय 2 करता हूं तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलता है। तो यहाँ भी वही किया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ a बार की जगह पे r बार, b बार की जगह पे v बार डेल्टा t। सो एरिया swept by a line joining planet and the sun is half r bar cross v bar delta t। ओके, ये पता होना चाहिए। सो एरिया डेल्टा ए बार इज हाफ r बार क्रॉस v बार डेल्टा t। अब एक प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की जो हमने सीखी नहीं थी, पर मैं बता देता हूं। दोनों वेक्टर में से किसी भी एक वेक्टर में अगर स्केलर आए, यहाँ पे स्केलर क्या है? टाइम। टाइम इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो उस स्केलर को आप विदाउट टेंशन, विदाउट अ लॉट ऑफ थॉट, डायरेक्टली उसको बाहर निकाल सकते हो फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने नहीं सीखा था, अभी बता देता हूं। इसका मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ आर बार क्रॉस वी बार। बट वी बार क्या होता है आपको पता है? व्हाट यू नो इज मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी बार। तो वी बार क्या होता है? p बार बाई एम, और m वापस स्केलर है तो स्केलर को बाहर निकालो। तो ये आ गया आपका डेल्टा ए बार बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/2m आर बार क्रॉस p बार। बट आर बार क्रॉस p बार, रेडियस r, मोमेंटम p, इसका क्रॉस प्रोडक्ट देता है हमको एंगुलर मोमेंटम। सो बाय डेफिनेशन
delta a bar by delta t is equal to 1 by 2m, और by definition r bar cross p bar is angular momentum. ये डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का, r bar cross p bar. अब मैंने आपको बताया था ये लॉज ऑफ एरिया, मतलब ऐसा क्यों होता है, व्हाई प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. मतलब देखो, अभी ऑर्बिट है, ऑर्बिट पे प्लैनेट कहीं पे भी हो, मास चेंज होगा क्या? नहीं. अर्थ का मास चेंज होता है क्या? नहीं होता है, मास कांस्टेंट है. अगर एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया, मतलब ओवरऑल एल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, तो ये पूरी क्वांटिटी ही कांस्टेंट, बराबर. तो डेल्टा ए बार बाय डेल्टा टी ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, दैट द एरिया कवर्ड बाय अ लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल. So this is how you can prove. Okay, so this is how you can prove mathematically second law of Kepler. Okay, so this is what you should be knowing. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं और कल वापस रिपीट होगा. So what we have learned today: 1. Kepler's first law. वो आपको सिर्फ इतना बताता है कि all the planets are moving in elliptical orbit with sun at one of the foci. फिर हमने सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और माइनर एक्सिस डिफाइन कर दिया. फिर हमने देखा केपलर सेकेंड लॉ, और केपलर सेकेंड लॉ में ऐसा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन कवर्स और स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो प्लैनेट पी पे है और पी से पी डैश में जाने के लिए 1 महीना लग रहा है, तो जो एरिया कवर करेगा वही एरिया अगर क्यू से क्यू डैश जा रहा है प्लैनेट कवर करने के लिए, सेम एरियाज होंगे. सो द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ law of conservation of angular momentum, right? And what important thing we have learned is, because the orbit being elliptical, the speed of a planet around the sun is not constant. जब planet दूर होगा, मतलब एपेलियर के आसपास होगा, the planet moves slower, और जब वो पेरियन के पास में होगा, the planet moves faster. Okay, so, or what you can say, it's because the distance is changing with respect to sun, you have seasons. So that is what we have learned today, and we'll be continuing here onwards in the next session. और second law मैं आपको पूरा का पूरा वापस बताने वाला हूँ. That will go into tomorrow's session again.